A very good morning to all my students. So, students, in the previous classes, we discussed many topics, out of which one topic was interior of the earth, in which we discussed about what is inside the earth surface. So, if you haven't watched that video, go and watch it because in this video lesson, I am going to relate that topic to this topic. Okay, so today in this class, I will be discussing about volcanoes. So, what are volcanoes? Actually, you all know that our Earth's surface is known as crust. The uppermost part is known as crust, and when we'll move deep inside it, we'll find different concentric layers. Like after crust, mantle comes up, and then after mantle, core comes up. So, mantle, as you all know, the lower part of the mantle is semi-solid, okay, and the outer core is molten in nature, and that molten thing, the rocky material which is in molten form, are known as magma. So आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस के थ्रू ये समझा कि अर्थ के इंटीरियर में अर्थ की जो सरफेस है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, और जैसे जैसे हम अर्थ के डीप में मूव करते चले जाते हैं हमें दूसरे लेयर्स मिलते हैं. लाइक मैंटल क्रस्ट के बाद आते हैं एंड आफ्टर मैंटल कोर कम्स अप. ओके, जहां पर हमने ये भी समझा था दैट अपर मैंटल, okay, the topmost layer of the upper mantle is solid, whereas the otherwise the mantle is in semi solid. Okay, mantle क्या है, semi solid है. okay, and जहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि outer core is completely molten in nature. वहाँ पर जितने भी rocks हैं वो molten state में हैं. I mean to say that they are in liquid form, और उस लिक्विड को हम मैग्मा कहते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेनेवर देयर आर फ्यू स्पॉट्स व्हिच आर वीक, ओके, जो भी क्रस्ट के वो स्पॉट्स, क्रस्ट के वो प्लेसेस जो वीक होते हैं, उस वीक स्पॉट से जब वो मैग्मा बाहर आते हैं, दे इरप्ट्स डाउन इनटू द अर्थ सरफेस. द ओपनिंग इज कॉल्ड द वोल्केनो. Okay, what happens? The magma which is present in the outer core and mantle, they comes out of the weaker spots of the earth crust. वो earth crust के weaker spots से बाहर आते हैं, they erupts. Okay, and that eruption or that opening is known as volcano. Okay, so what is volcano? A volcano is a vent. So what is the meaning of vent? See, whenever we are reading about volcano, we must know few of the terms. So what is vent? Suppose this is the earth's crust, okay, and here this part of the earth crust is a weak spot. Okay, ये क्या है, weak spot है. And as you all know, crust की thickness as compared to mantle and core, it is very thin. Okay, so crust as compared to mantle and core, it is a weak layer of the earth. Okay, so crust क्या है, mantle and core से weaker layer है. So जब भी कोई एक weak spot से ये मैग्मा जो आउटर कोर में प्रेजेंट होते हैं, जब ये ड्यू टू फोर्स और प्रेशर की वजह से जब ये ऊपर की तरफ बाहर आते हैं, देन इट the opening with they come out with the opening, and that opening is known as vent. Okay, उसे हम क्या कहते हैं, vent कहते हैं. So a volcano is a opening or a vent where from where the magma comes out of the earth and it comes into the earth surface. वो कहाँ पर आते हैं, earth surface पे erupt होते हैं. I hope you all are clear that what is volcano. Okay, so how do they come up?
they come up with the deep cracks or the fissures. जो छोटे मोटे होल्स होते हैं या जो cracks होते हैं वो उनके थ्रू क्या होते हैं अर्थ सरफेस में बाहर आते हैं and they solidify after few days. कुछ volcanoes they are very aggressive, they are very eruptive, that they destroy many of the buildings, they destroy many of the settlements there. Okay, so what is volcano? आप सभी समझते हो that inside the earth there is magma flowing deep down, and that magma when comes out of the earth surface it is known as lava, and that is known as what? Volcano. जब मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर आते हैं अर्थ क्रस्ट के किसी डीप क्रैक्स या किसी डीप होल से जब वो बाहर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्केनो कहते हैं. अंडरस्टूड? ओके. अब whenever volcanic eruption happen, अब volcanic eruption क्या होते हैं? The coming out or the coming out of the magma फ्रॉम द अर्थ. ओके, अर्थ से जब प्रेशर के कारण जब वो मैग्मा अर्थ सरफेस में आते हैं तो हम उसे लावा कहते हैं. याद रखिएगा, जब मैग्मा अर्थ सरफेस को रीच करते हैं, जब वो अर्थ सरफेस में पहुंच जाते हैं तो उसे मैग्मा ना कहकर हम उसे लावा कहते हैं. ओके और जब वो इस तरह से whenever they comes out of the earth due to pressure, that is known as volcanic eruption. उसे क्या कहते हैं? volcanic eruption कहते हैं. ओके and whenever volcanic eruption happens it gives out gases, ash, steam and many a times rocks are spewed out. Okay, वो क्या होते हैं? mantle के थ्रू वो क्या अपने साथ कई रॉक्स को, गैसेस को, एशेस को और स्टीम को अपने साथ लेकर आते हैं. अब गैस क्या होते हैं आप सभी जानते हो, ऐश होते हैं राख, स्टीम होते हैं भाप. ओके एंड रॉक्स छोटे छोटे पत्थरों को भी वो अपने साथ वो क्या करते हैं अर्थ सरफेस में रीच करते हैं और वो उसे लेकर आते हैं. ओके सो वॉल्केनो समटाइम्स रिफर्स टू वॉल्केनिक कोर. अब कभी कभी क्या वॉल्केनो का मतलब वॉल्केनिक कोन भी होता है. अब आप सभी जानते हो कि जब भी एक वॉल्केनो, आई एम हियर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल. सपोज here it is the magma. Okay, deep down inside the earth there is a magma. Okay, and due to pressure it comes out of the earth surface, it comes out of the earth surface through an opening. ये क्या किसी ओपनिंग के थ्रू क्या होते हैं? बाहर आते हैं. ये मैग्मा अर्थ सरफेस को रीच करते हैं. अर्थ सरफेस तक पहुंचते कैसे हैं? ड्यू टू द ओपनिंग. ओके अब ये ओपनिंग की वजह से ये क्या होते हैं? अपने साथ कई सारे गैस लेकर, डिफरेंट गैस, स्टीम, रॉक्स, ये सभी क्या करते हैं? अर्थ में इरप्ट करने के बाद ये थ्रो करते हैं. ओके अब देखिए जब भी इस तरह के वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं सो इन द ओपनिंग देयर इज समथिंग विच इज नोन एज क्रेटर. अब देखिए क्रेटर जैसा कुछ फॉर्म होता है. अब ये क्रेटर क्या होता है? व्हेनेवर जब भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो वहां पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. और वो कप लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि अगर वॉल्केनो या फिर किसी चीज़ को आप बाहर निकाल रहे हो, लाइक टूथपेस्ट. हम सभी जानते हैं जब हम टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं फ्रॉम बॉटम, ओके हम उसे जब प्रेस करते हैं तो वो बाहर आते हैं. और कई बार हम क्या करते हैं उस होल में वो टूथपेस्ट क्या होते हैं? थोड़े स्टिक रह जाते हैं या चिपके रह जाते हैं. उसी तरह से जब वॉल्केनो इरप्शन वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो इस ओपनिंग में थोड़े बहुत जो भी रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें स्टिक रह जाते हैं. और उस रॉक्स की वजह से यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल इट क्रेटर. ओके और जैसे जैसे ये क्रेटर टाइम जैसे जैसे बीतता चला जाता है, एज द टाइम पास बाय, ये क्या होते जाते हैं? धीरे धीरे इनकी साइज क्या होती है? बड़ी होती चले जाती है. ये वाइडर होते जाते हैं और शैलोअर होते जाते हैं. एंड व्हेन दीज क्रेटर वाइडन अप एंड गेट शैलोड, इसे हम क्या कहते हैं? कैल्डेरा कहते हैं. क्या कहते हैं? कैल्डेरा. सो लेट्स सम इट अप. किस तरह से हम वॉल्केनोस को समझते हैं? सो आपको मैं बता दूं कि अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा प्रेजेंट है.
मॉल्टेन रॉक प्रेजेंट है, एंड जब ये मॉल्टेन रॉक प्रेशर के कारण अर्थ सरफेस को किसी ओपनिंग की तरफ से निकलते हैं, ठीक है, बाहर आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। एंड जब वॉल्केनो मैग्मा जब अर्थ सरफेस को रीच करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। अंडरस्टूड। अब जिस ओपनिंग से ये बाहर आए हैं, जिस ओपनिंग से ये बाहर आते हैं उसे वेंट कहते हैं, और ओपनिंग होने के बाद जब वॉल्केनिक इरप्शन हो जाते हैं तो वहां पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्डेरा, सॉरी क्रेटर। और जब ये क्रेटर धीरे धीरे वाइडन अप एंड शैलो होते चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कैल्डेरा। ओके, so I hope you all are clear about the volcano, that how does volcano happen. okay, जो भी weaker spots होते हैं क्रस्ट के, उस weaker spots को कई बार वो क्या करते हैं, वहां पर क्रैक कर देते हैं, और उस क्रैक्स के थ्रू वो क्या, वो मैग्मा अर्थ सरफेस के बाहर आते हैं, और उसे हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। और जब मैग्मा अर्थ सरफेस को रीच कर जाते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं लावा। ओके, और अपने साथ ये गैसेस, स्टीम, एशेज एंड मेनी अ टाइम्स वो अपने साथ रॉक भी लेकर आते हैं। ओके, नाउ टेक्टोनिक प्रोसेसेस। सो टेक्टोनिक प्रोसेसेस को समझने के लिए, फॉर टू अंडरस्टैंड टेक्टोनिक प्रोसेसेस, यू मस्ट नो टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, सी, आवर अर्थ्स लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट spheres, different parts, okay, different like जिगजॉ पजल आपने गेम खेला होगा, किस तरह से हम क्या करते हैं, पजल्स को ज्वाइन करके एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उसी तरह से हमारी जो अर्थ की लिथोस्फीयर है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड है, डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, टूटी हुई है। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। सो आवर अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल पीसेस। हमारे अर्थ की जो लिथोस्फीयर है वो डिफरेंट पीसेस में डिवाइडेड है, डिफरेंट पीसेस में टूटी हुई है। और ये जो डिफरेंट पीसेस हैं, इंडिविजुअल पीसेस को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। And let me tell you, these tectonic plates are floating on the mantle. Okay, आप सभी को पता है कि जो mantle है वो सेमी मॉल्टेन है, और उसके ऊपर क्रस्ट की लेयर आती है। So crust is also known as lithosphere. ओके, क्रस्ट और जो मैंटल की टॉप मोस्ट लेयर है जो सॉलिड है, वो क्या, लिथोस्फेयर कहलाती है। तो वो जो लिथोस्फेयर उस मैंटल के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही हैं, ये कंटिन्यूअसली क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। ठीक है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, द फ्रेगमेंटेड पार्ट और द ब्रोकन पार्ट ऑफ द अर्थ लिथोस्फेयर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, ये हमेशा एक दूसरे क्या कर रही है, मूव कर रही है। और ये किसके ऊपर फ्लोट कर रही है, मैंटल के ऊपर ये फ्लोट कर रही होती हैं। अब कई बार क्या होता है, व्हाट इज टेक्टोनिक प्रोसेसेस, ये मूव करती हैं तो कई बार क्या होता है, एक दूसरे से ये क्या होती हैं, बैंग करती हैं, मतलब एक दूसरे से ये टकराती हैं। कई बार क्या होता है कि ये एक दूसरे से क्या, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो इस वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन भी होता है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं, और कई बार कई लैंडफॉर्म्स के को डिस्ट्रॉय भी होते हैं। जैसे अभी मैंने वॉल्केनो आपको बताया, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट, अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, तो इससे क्या होता है, अर्थ के सरफेस में प्रेशर क्रिएट होता है, और वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। क्रस्ट की वो क्रस्ट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब आप कई बार अगर किसी एक चीज़ को बार बार एक दूसरे से बैंग करोगे, देन डेफिनेटली दोनों में से कोई एक चीज़ क्या होगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, या फिर हो सकती है दोनों ही वीक हो जाएं। सो इस वजह से क्या होता है, इन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से या कई बार एक दूसरे के दूर जाने से कई लैंडफॉर्म्स बनते भी हैं और कई लैंडफॉर्म्स डिस्ट्रॉय भी होते हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलिए, अब ये क्या होता है, कई बार एक दूसरे को पुश करते हैं, कई बार एक दूसरे को पुल करते हैं, इस वजह से कई डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं और कई डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिस्ट्रॉय भी होते हैं। ओके, okay, now it is the word which is taken from the Greek word which is tecton का मतलब क्या होता है, builder. okay, builder. So
मैंने अर्लियर भी बताया आपको कि अर्थ की जो लिथोस्फेयर है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड है, फ्रेगमेंट्स में टूटी हुई है, और ये फ्रेगमेंट्स क्या कर रही हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं, मैंटल के ऊपर ये फ्लोट कर रही हैं, और कई बार ये एक दूसरे को पुश करती हैं और पुल करती है, जिस वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, बिल्डअप होते हैं। ओके, सो इस तरह से आप याद रखोगे कि टेक्टोनिक जो वर्ड है वो किस वर्ड से लिया गया है, इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड Greek word which is tecton, which means builder. Okay, now we'll discuss about what? We'll discuss about the earthquake. Now, what is earthquake? Let's discuss. Now, what happens that when when do we say that earthquake has happened? Okay, when do we say कि earthquake आया है? So whenever we feel the shaking of the earth, okay, जब भी हम ये feel करते हैं कि earth shake कर रही है, then we call it as earthquake. Now let me tell you that earthquake is happening, or the vibrations are producing every time whenever we are doing anything, but that vibrations or that shaking of the earth we cannot feel that because it is very low, वो उतनी high intensity की नहीं होती है। सो आप सभी समझ सकते हो कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे को बैंग करती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं, तो जाहिर सी बात है हम किसी दो चीज़ों को एक दूसरे से टकराते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वो वाइब्रेशन से ही हम क्या बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया है। ओके, सो whenever the vibrations are produced which are very violent and can cause severe damage, that is called as earthquake. इसे हम क्या कहते हैं, earthquake कहते हैं। सो ये earthquake किस वजह से आते हैं, ड्यू टू द टेक्टोनिक प्रोसेसेस। अब ये टेक्टोनिक प्रोसेसेस मैंने अर्लियर डिस्कस किया है कि क्या होते हैं, जब भी कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स या जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो कई बार वो एक दूसरे को पुश करते हैं और कई बार एक दूसरे को पुल करते हैं। दैट मीन्स कई बार वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आकर वो क्या होते हैं, बैंग हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, टकराते हैं, या फिर कई बार वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, सो अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, जब भी एक सडन अचानक से एक अर्थ में शेकिंग होती है, अर्थ में हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं, देन उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। और ये अर्थक्वेक क्या होते हैं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इट कैन कॉज सिवियर डैमेज टू द पीपल एंड टू द सेटलमेंट्स ऑफ द पीपल। अब आप देखते हो कि कई बार जब वाइब्रेशंस बहुत ही ज़्यादा होती हैं तो कई सारे बिल्डिंग्स क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, कई सारे बिल्डिंग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है। ओके, सो it can cause damage to a very great extent. अब देखिए, जहां से ये वाइब्रेशन क्रिएट होती है अर्थ के इनसाइड, जहां से ये वाइब्रेशन क्रिएट होती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस के जस्ट अबव जो अर्थ सरफेस होती है, जहां से ये वाइब्रेशन आगे जितने भी अर्थ सरफेस है वहां तक क्या होती है, स्प्रेड होती है। लाइक आपने कभी स्टोन अगर पानी में फेंका होगा तो आप देखते हो जहां पर आप स्टोन फेंकते हो वहां से वो रिपल्स जो तरंगे बनती हैं वो क्या होती है, दूसरे पार्ट्स में क्या होती है, स्प्रेड होती है, उस वाटर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आपको दिखाई देती हैं। ठीक उसी तरह से फोकस वो पॉइंट होता है जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, और फोकस के जस्ट अबव जो अर्थ सरफेस प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर, जहां से वो जो भी वाइब्रेशन है वो आगे जितने भी 100 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो उस वहां तक वो फील की जा सकती है, वहां तक उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके, अब देखिए, इसे मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, दैट इज सिस्मोग्राफ। अब an instrument is being used to measure the intensity of the earthquake. earthquake की इंटेंसिटी को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और ये सिस्मोग्राफ की स्केलिंग होती है 1 to 10, मतलब 1 to 10 में हम क्या कर सकते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं।
अब अगर ये 1 to 5 होती है तो इतनी ज़्यादा सिवियर डैमेज नहीं होती है, बट वेन एवर इट इज़ मोर देन 5 देन इट कैन कॉज सिवियर डैमेज। जब भी ये 5 से ज़्यादा होती है तब ये सिवियर डैमेज क्रिएट करती है। अंडरस्टूड? नाउ अब देखिए, हमें अर्थक्वेक जब भी आते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस को, या प्रिकॉशंस नहीं, मैं बोल सकती हूँ कुछ कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ती हैं। ओके, सो व्हाट आर दोज? सो व्हेनेवर द अर्थक्वेक हैपेंस वी शुड गेट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, हमें बिल्डिंग से दूर हो जाना चाहिए। और कई बार हमें ग्लास सीलिंग, जो गैस स्टोव्स होते हैं उनसे दूर हो जाना चाहिए। टेबल के नीचे हमें अपने हेड को अपने हैंड से और अपने पिलो से कवर कर लेना चाहिए। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच वी कैन डू वेन एवर अर्थक्वेक ऑकर्स। जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक केस स्टडी आपको दी गई है, अर्थक्वेक एट भुज इन 2001। अब 2001 में गुजरात के कच्छ से, ओके, अर्थक्वेक के वाइब्रेशन स्टार्ट हुई थी। अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो क्या था, उस रन ऑफ कच्छ से वो अर्थक्वेक स्टार्ट हुई थी और वो पूरे भुज तक फैल गई थी, जिस वजह से पूरे गुजरात में और स्पेशली इन भुज बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, जहाँ पर लगभग 20,000 पीपल की डेथ हो गई थी। ओके, और इसकी रिचर स्केल, मतलब ये 1 to 10 में, मैं बताती हूँ आपको, ये 7 रिचर स्केल की अर्थक्वेक थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था। और उसके बाद से वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई जहाँ पर वो क्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाने लगे, और जो भी बिल्डिंग्स होती थी वो ज़्यादा स्टोरे बिल्डिंग नहीं होती थी, क्योंकि जितने ज़्यादा बर्डन होंगे, जितना ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग होगी, डैमेज उतना ही ज़्यादा होगा अगर अर्थक्वेक सिवियर आते हैं तो। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट to prevent the damage occurred by the earthquake। earthquake से होने वाले डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ये सभी पॉलिसीज गवर्नमेंट अपना सकती हैं। ओके।